Today we will start with the next unit, that is optics. What is optics? ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट को स्टडी करते हैं, यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द लाइट. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the light. यानी लाइट की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. अब ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस हैं. देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स. फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड वन इज wave optics. Ray optics and wave optics. In the propagation of light, various theories has been put forward to study the how the light is traveled or to study the propagation of light. First of all, Newton put forward a theory known as Newton corpuscular theory. According to this theory, the light travels in the form of a particle. This theory can explain various phenomena like reflection of light, refraction of light, or photoelectric effect. What this theory could not explain, some phenomena like interference of light, diffraction of light, polarization of light. तो later on, Max Planck put forward another theory known as quantum theory. According to that theory, light travel in the form of packet of energy, and that packet of energy is called quantum or quanta. That theory can also explain some phenomena based on the light, but it could not explain all the phenomena. Later on, Huygens put forward another theory known as wave theory of light. According to that theory, the light travel in the form of a wave. This theory can also explain some phenomena like interference of light, polarization of light or diffraction of light, refraction of light, reflection of light, but it could not explain photoelectric effect or Compton effect. Similarly, Maxwell also put forward another theory known as electromagnetic theory. According to that, the light travel in the form of electromagnetic wave. This theory can also explain a few phenomena, but it could not explain all the phenomena. Finally, de Broglie put forward another theory known as dual nature of light. According to that theory, the light travel in the form of particle as well as in the form of a wave. Sometime it behave as particle and sometime it behave as a wave. So finally, some phenomena that can be explained on the basis of particle theory, that can be explained on the basis of this theory, as well as some phenomena which are based on the wave nature of the light, that can also be explained on the basis of this theory. So finally, according to de Broglie theory, it was suggested that light travel in the form of particle as well as wave. It means light exhibit dual character, that is particle as well as wave nature of light. So there are various phenomena which are based on the light, but here first of all we will discuss about the ray optics. In the ray optics, we mostly consider the particle nature of the light. So let us discuss about ray optics. In the ray, the light is assumed to be travel in the form of ray along the straight line. Ray can be represented like this.
by putting an arrow at one end of the line, that is called ray. अगर लाइन के एक एंड के ऊपर हम एरो लगा देते हैं तो उसको हम रे बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ फिनोमिना हैं जो कि रे नेचर के ऊपर यानी कि पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? The phenomenon of bouncing back of a light, that is called reflection of a light. यानी the phenomenon of bouncing back of light. Suppose this is the surface, एक लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट करी और ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई उसी मीडियम में, इन द सेम मीडियम द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अगर लाइट इंसिडेंट करती है और उसी मीडियम में, जिस मीडियम में ये इंसिडेंट कर रही थी उसी मीडियम में ये वापिस हो जाती है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। This is called incident ray. This ray is called reflected ray. अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, देन दैट नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। नाउ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड reflected ray is called angle of reflection. So according to law of reflection, that is, what are the laws of reflection? Laws of reflection, very first is angle of incidence is equal to angle of reflection। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, चाहे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है चाहे ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो हमारे पास इस तरह का कोई सरफेस है, यहाँ पर यहाँ से इंसिडेंट करती है और इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है, देन इन दिस केस ऑल्सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या था? इंसिडेंट रे reflected ray and normal lie in the same plane. Incident ray, reflected ray and normal lie in the same plane. एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल का एक ही प्लेन होगा। कहने का मतलब अगर इस प्लेन में ये इंसिडेंट कर रही है तो इसी प्लेन में वापस रिफ्लेक्ट होगी और इसी प्लेन में इसका नॉर्मल लाई करेगा, ठीक है। दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मोस्टली वी विल स्टडी हियर रिफ्लेक्शन ऑन द स्फेरिकल सरफेसेस और स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर। Reflection on spherical mirror. What are spherical mirror? अब मिरर क्या है? मिरर एक हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। What is mirror? Mirror is highly reflecting surface. मतलब इट रिफ्लेक्ट द मोस्ट ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। तो मिरर इज द हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब
हाउ स्फेरिकल मिरर्स आर कैन बी फॉर्म्ड। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है, सपोज दिस इज द स्फीयर। अब अगर हम इस स्फीयर का एक स्मॉल पोर्शन कट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये पोर्शन इसका कट कर दिया, इतना पोर्शन, ठीक है, ये इसका सेंटर है मिरर का। अब इसका अगर इतना सा पोर्शन कट कर दिया तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये पोर्शन आ गया हमारे पास। अब अगर एक साइड को हम इसकी पॉलिश कर देते हैं, ये पॉलिश कर दिया, इस साइड से हमने पॉलिश कर दिया, तो अब ये वाला सरफेस जो है, जो कर्व्ड सरफेस है, दैट विल एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट रिफ्लेक्ट द मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। इट इज़ नॉट नेसेसरी, अगर हम इसका यही पोर्शन मिरर का हमने इसका सरफेस, स्फेरिकल सरफेस का यही पोर्शन हमने ले लिया और इस साइड से हमने इसको पॉलिश कर दिया, तो इसका ये वाला सरफेस जो है, इधर वाला सरफेस, दैट विल एक्ट एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे मान लो ये हमारे पास एक मिरर है, इस तरह का सरफेस बन जाएगा। अब इसमें या तो हम इधर से पॉलिश करेंगे या इधर से पॉलिश करेंगे। अगर मैं इधर से बाहर की तरफ से पॉलिश करता हूँ, जैसे ये है, इसमें मैंने बाहर की तरफ से पॉलिश किया, तो इसका ये वाला सरफेस जो था वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्ट कर दिया। अब यहाँ से लाइट पड़ेगी, इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। सिमिलरली अगर मैं अंदर वाले पोर्शन को, इधर वाले पोर्शन को पॉलिश करता हूँ, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये एक्ट कर जाएगा, तो इधर से जो लाइट पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सच टाइप ऑफ सरफेस इज कॉल्ड, ये वाला जो मिरर है, दिस मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा इस तरफ से, तो दिस मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। एंड दिस सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अब इस में कुछ टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, तो व्हाट इज टर्मिनोलॉजी। अब क्योंकि मैंने इस सरफेस का ये काटा हुआ था, इस स्फीयर का ये सरफेस काटा था, तो ये जो सेंटर है होगा इसका, स्फीयर का जो सेंटर होगा, दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर है इसका, इसका सेंटर इधर था, दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और जो मिड पॉइंट होगा इसका मिरर का, दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। दिस इज द टर्मिनोलॉजी विच वी हैव टू स्टडी बिफोर डिस्कसिंग द रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस या स्फेरिकल मिरर। तो जो मिड पॉइंट है मिरर का, दैट मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। इसका पोल ये आ गया। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और इसकी ये जो डायमेट्रिकल विड्थ होगी, दिस डायमेट्रिकल विड्थ इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। दिस इज कॉल्ड अपर्चर, यानी डायमेट्रिकल विड्थ ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। दिस इज द टर्मिनोलॉजी। अब हमने स्टडी करना है रिफ्लेक्शन ऑन द स्फेरिकल सरफेसेस, हाउ रिफ्लेक्शन ऑन द स्फेरिकल सरफेसेस टेक्स प्लेस। नाउ वी हैव टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑन द स्फेरिकल सरफेसेस। अब नाउ सपोज ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, जैसे ये कॉनकेव मिरर है। अगर इधर से मैंने इसको पॉलिश कर दिया, ये साइड इसकी पॉलिश कर दी गई, तो ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसी सरफेस की ये वाली साइड पॉलिश कर देता हूँ, ये जो मैं डैशेस शो कर रहा हूँ, इट रिप्रेजेंट दैट दिस साइड ऑफ द मिरर इज पॉलिश्ड। ये पॉलिश्ड साइड है।
अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। सपोज वी रिप्रेजेंट द पोल विद पी। ये आ गया पोल ऑफ द मिरर। ये आ गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये स्फीयर बनता है, तो इसका मतलब ये आ गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इधर आ जाएगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो इधर स्फीयर बनता है। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द कर्वेचर। मोरओवर इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, देन दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से, देन दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मेन एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसको इस तरह से बढ़ा दिया जाए, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब हमने स्टडी करना है रिफ्लेक्शन ऑन द स्फेरिकल सरफेसेस। मान लीजिए एक पैरेलल लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट करती है, ये इंसिडेंट करी। नाउ देयर विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ दिस लाइट। अब यहाँ पर आकर के रिफ्लेक्शन होगी। अब ये इधर रिफ्लेक्ट होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, कहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी किए, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब नॉर्मल होना चाहिए। सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मान लो इस केस में भी ये लाइट रे इंसिडेंट कर गई यहाँ पर, अब ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, या यहाँ पर इंसिडेंट कर गई, ये यूँ इस तरह से कर गई, इंसिडेंट कर गई, या इस तरह से इंसिडेंट कर गई, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। अभी तक मैं ले रहा हूँ दोज लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट करी। अब इनकी रिफ्लेक्शन होगी यहाँ से। मेन बात ये है कि रिफ्लेक्शन आपने कैसे, इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी। अब मेन पॉइंट है, बाय यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल कौन सी रे होगी, कौन सी लाइन होगी, अगर किसी भी स्फेरिकल, जैसे स्फीयर है ये, एक्चुअली ये स्फीयर है, इस तरह से स्फेरिकल सरफेस है, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, यानी कि सेंटर ऑफ स्फीयर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो सरफेस के ऊपर नॉर्मल होती है। इसका मतलब अगर मैं सेंटर, इसके स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करता हूँ तो ये नॉर्मल का रोल प्ले करेगी यहाँ के, इट विल बी नॉर्मल ऑन द सरफेस। सिमिलरली यहाँ अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं इस पॉइंट को क्या करूँगा, सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा, बात ख़त्म, ये नॉर्मल हो जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करना है तो इसको नॉर्मल से सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, ये नॉर्मल हो जाएगी। अब दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, तो ये रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, इसका मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली ये इधर से इंसिडेंट करी, ये था इसका एंगल, इसका इंसिडेंस। अब नॉर्मल ये आ रहा है, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया यूँ, ये नॉर्मल है, इसको भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, नो डाउट। अब ये नॉर्मल है तो दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता हूँ तो ये इधर आ जाएगी, पीछे बढ़ाने पर। सिमिलरली अगर मैं इस लाइट रे को रिप्रेजेंट करता हूँ तो यहाँ पर नॉर्मल ये आ जाएगा, ये नॉर्मल आ गया। दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये अल्टीमेटली इधर चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के, ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको, ठीक है। सिमिलरली इसको अगर मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तो
इस पॉइंट को ज्वाइन करिए, ये नॉर्मल आ गया यहाँ पर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो इतना ही इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी, ये इधर चली जाएगी। दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि ये लाइट रे इधर बेंड हो गई, ये इधर बेंड हो गई, अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं तो पीछे मुझे यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। ये अगर मैं इस लाइट रे को यहाँ से देखता हूँ तो इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। सिमिलरली इन लाइट रेज को देखें तो ये इस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं आकर के। तो जितनी भी लाइट रेज हैं विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर, in case of concave mirror all the light rays converge at a point, this point is called focus। ये इसका फोकस होगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अब ये लाइट रेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑल द लाइट रेज अपीयरिंग टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, अपीयर हो रही हैं, ये कन्वर्ज नहीं होंगी क्योंकि ये तो इधर से इंसिडेंट करी और इधर चली जाएगी, ये इधर से इंसिडेंट करेगी इधर चली जाएगी। जो लाइट रे इधर से जाएगी, इधर से जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, क्योंकि नॉर्मल यही एक्ट कर जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा, ये इधर वापस हो जाएगी। सिमिलरली ये भी इधर से जाने वाली लाइट रे इधर से वापस आ जाएगी। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। यानी द पॉइंट, व्हाट इज फोकस, focus, the point at which rays parallel to principal axis, केवल जो पैरेलल होंगी, बाकी रेज नहीं, ओनली विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन either converge or appear to diverge। either converge और appear to diverge का क्या मीनिंग है कि अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कन्वर्ज होने का मतलब मीट कर रहे हैं, कन्वर्ज का मतलब मिल रही हैं, और डाइवर्ज का मतलब क्या हुआ, यहाँ से बिखर रही हैं। अब यहाँ से अगर मैं इन लाइट रेज को देखूं तो ये लाइट रेज इस पॉइंट से बिखरती हुई नज़र आ रही हैं, और इस पॉइंट के ऊपर ये लाइट रेज जो है वो मिल रही हैं। तो कन्वर्ज का मतलब हो गया कि मीट करना। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज होंगी, जिस पॉइंट के ऊपर इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ये कन्वर्ज हो रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। Similarly, the point at which rays parallel to principal axis after reflection appear to diverge, इस केस में डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही हैं, और इस केस में कन्वर्ज होती हुई अपीयर हो रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और पोल से फोकस की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये वाली जो डिस्टेंस होगी दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ, focal length, the distance between pole and focus of mirror। पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या आ गई, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ मिरर। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिलेशन बिटवीन focal length and radius of curvature। R is equal to 2f।
जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, वो इसका डबल होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, अब हमें स्टडी करना है कि इसकी रे डायग्राम कैसे बनानी है। द मेन पॉइंट इज हाउ टू मेक द रे डायग्राम। नाउ सपोज ये एक कॉनकेव मिरर है, मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल आ गया और ये आ गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली ये रेडियस आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर, अब अंडरस्टूड सी बात है, ये पोल था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वहाँ पर इसका फोकस एक्ट कर जाएगा। अब यहाँ से अगर मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट है, अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है, अब इसकी इमेज बनानी है हमें। नाउ इमेज क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इमेज? इमेज क्या है? इमेज, अब इसका मतलब ये हो गया, जैसे हम बात करें इस पॉइंट की, यहाँ पर अगर मान लो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये सारी लाइट रेज यहाँ पर मिल गई, तो दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। या यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर रखा गया है, तो इमेज एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो कन्वर्ज करेंगी या फिर अपीयर टू डाइवर्ज। दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि द पॉइंट at which rays after reflection either converge or appear to diverge। जिस पॉइंट के ऊपर, ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हों, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रही हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब ये हो गया दैट इज कॉल्ड द फोकस। लेकिन बाकी और भी तो रेज होंगी, देयर आर सो मैनी रेज। तो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करेंगी या फिर अपीयर टू डाइवर्ज होंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। कौन कौन सी इमेज? दो प्रकार की इमेजेस हम मोस्टली डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट इज रियल इमेज। व्हाट इज रियल इमेज? द पॉइंट at which rays after reflection converge। जिस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करती हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज। और सेकंड कौन सी आ गई? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होगी? द पॉइंट at which rays after reflection appear to diverge। तो कहने का मतलब ये हो गया कि रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट के ऊपर रेज कन्वर्ज होती हैं वो रियल इमेज, और अगर डाइवर्ज हो रही हैं तो वर्चुअल इमेज। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की हमने इमेज ट्रेस करनी है, तो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, इस पॉइंट की इमेज ट्रेस कर लो। जैसे ये पॉइंट ए ले लिया, अब यहाँ से कई लाइट रेज निकलेंगी, तो अल्टीमेटली इन लाइट रेज को ट्रेस करिए। तो
सपोज मैंने क्या किया, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये आ गई। जैसे ये लाइट रे यहाँ से निकलने वाली इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी आएंगी बाहर की तरफ। देयर आर सो मैनी रेज विच आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। नाउ अब ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? अब अगर मैं नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता हूँ, तो अल्टीमेटली ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के बाद रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से कहाँ के किस पॉइंट के ऊपर फोकस हो, किस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती है ये लाइट रे? ये कन्वर्ज होगी फोकस के ऊपर। तो इसका मतलब जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से वापस आएगी। ये आ गया। और एक सिंपल सी बात ध्यान में रख लेंगे कि जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करेगी मिरर के ऊपर, स्फेरिकल मिरर के ऊपर, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आएगी। सिमिलरली दूसरी लाइट रे कौन सी ड्रॉ करेंगे? जैसे मान लो मैं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करता हूँ, एक लाइट रे इधर से जा रही है। अब इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी? क्योंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट करेगी। नॉर्मली अगर इंसिडेंट करती है तो ये उसी पाथ से, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा। तो ये इसी पाथ से वापिस आ जाएगी। तो एटलीस्ट कन्वर्जन के लिए हमें दो रेज कम से कम ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो अगर इसका मतलब ये हो गया कि जो इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट लाइट पास करेगी तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद जैसे ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद इधर से आई और ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद इधर से वापस आई, तो इस पॉइंट के ऊपर आकर के ये कन्वर्ज हो गई, इस पॉइंट के ऊपर मिल गई आप आकर के। तो इसका मतलब इस पॉइंट की इमेज यहाँ पर बन गई। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ए डैश से। सिमिलरली यहाँ से निकलने वाली लाइट रेस या इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से निकलने वाली, अब इसका मतलब यहाँ से निकलने वाली लाइट रेस यहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी, यहाँ से निकलने वाली लाइट रेस यहाँ जैसे कन्वर्ज हो जाएंगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ इसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये इसकी इमेज एक्ट कर जाएगी ए डैश बी डैश। दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट हाउ वी कैन ड्रॉ। सिमिलरली अगर मैं एक लाइट रे और निकालता हूँ, टू रेज आर सफिशिएंट टू लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिलहाल इमेज इसकी ट्रेस हो गई है। अगर मैं एक और रे ड्रॉ करूँ, जैसे मान लो फोकस से ड्रॉ करता हूँ, तो अगर फोकस से ड्रॉ करूँ, ये इंसिडेंट लाइट रे अगर फोकस से पास कर रही है, अब अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कैलकुलेट करूँ, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस आ जाएगी इस तरह से। तो इसी पॉइंट के ऊपर हुई ये भी कन्वर्ज आ करके। तो जितनी भी लाइट रेज यहाँ से निकलेंगी इस पॉइंट से, वो सारी की सारी इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होंगी। तो यानी कि अगर लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड image of that particular object. Similarly, such type of image is called real image. ये इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कहलाएगी। अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है सपोज। अब मान लो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सपोज हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज बनानी है। अब ये हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल आ गया मिड पॉइंट, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ये P आ गया, ये C आ गया। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब जैसे मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, एक AB कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ट्रेस करनी है। अब इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो एक लाइट रे ले ली मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, अब इस केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास नहीं होगी, क्योंकि पोल और फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड फोकस। बट ये रिफ्लेक्ट होगी इधर, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन
अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता हूँ देन इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ये अपीयर होगी कि जैसे फोकस से वापिस आ रही है। सिमिलरली जो लाइट रे, अब मैंने एक लाइट रे इधर से ड्रॉ की, यानी कि सेकंड में ड्रॉ कर रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, कहने का मतलब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर को मद्देनज़र रखा कि अब ये लाइट रे अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको तो ये इस पॉइंट से मिलती हुई लग रही है, तो इसका मतलब ये नॉर्मली इंसिडेंट करी तो ये इसी पाथ से वापस आएगी, आगे नहीं जाएगी। इसका मतलब ये यहीं से वापस हो जाएगी, तो ये लाइट रे इधर से वापस हो जाएगी, आगे मत देखिए, ठीक है। ये लाइट रे इधर से ही वापस हो गई और ये लाइट रे यहाँ से इधर से वापस हो गई, तो फाइनली इसका मतलब ये कहीं नहीं मिलेंगी आपस में, ये इधर से यूं चली जाएगी, ये इधर से यूं चली जाएगी, तो ये आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी, आगे जा कर के कन्वर्ज नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं इनको पीछे बढ़ाता हूँ तो इसका मतलब ये इस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही है, ये इधर से आ रही है, ऐसा यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है ये लाइट रेज, तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज द इमेज ऑफ द दिस ऑब्जेक्ट ए बी। तो ये ए पॉइंट की ये इमेज बन गई यहाँ पर, इसको मैंने ए डैश रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली इस पॉइंट की इमेज यहाँ जैसे बनेगी, इस पॉइंट की इमेज यहाँ जैसे बनेगी, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये इसकी इमेज आ जाएगी ए बी की, ए डैश बी डैश, ये इसकी इमेज बन गई, ठीक है। सच टाइप ऑफ इमेजेस क्यों आर कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस, क्योंकि यहाँ से डाइवर्ज होती हुई ये अपीयर हो रही है, तो ये वर्चुअल इमेज बनी। पिछले वाले केस में जो था वो रियल इमेज बनी थी क्योंकि मिली थी, ठीक है। तो रियल इमेजेस जो हैं वो मिरर से पहले बन रही हैं, जैसे हमारे पास रियल इमेज ये थी ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट की रियल इमेज थी, ये थी रियल इमेज, तो मोर ओवर ये उल्टी बनी, ऑब्जेक्ट इधर था, ऑब्जेक्ट यूं था, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट यूं था और इसकी इमेज यहाँ पर यूं बनी, तो ये उल्टी बनी इसकी, मतलब कहने का ये हो गया कि रियल इमेजेस जो है वो उल्टी बनती है, लेकिन वर्चुअल इमेज जो है वो, ये वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज जो है वो सीधी बनती है। तो वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट एंड रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, वो उल्टी बनती है तो उसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं। मोर ओवर रियल इमेजेस मिरर से पहले बन रही हैं और वर्चुअल इमेजेस मिरर्स के बाद बनती है। मोस्टली जो रियल इमेजेस हैं दे फॉर्म्ड बिफोर द मिरर एंड वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड आफ्टर द मिरर। ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है साइन कन्वेंशंस का। नाउ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस, व्हाट आर साइन कन्वेंशंस? इसमें जब भी हम डिस्टेंसेस यूज़ करते हैं या मेज़र करते हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर साइन लेते हैं। वेरी फर्स्ट इज ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पहली क्या थी, ऑल डिस्टेंसेस measured from the pole। सेकेंड वन इज, अब इसका मतलब जैसे मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो यहाँ से मेज़र करनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इमेज है, ये क्योंकि यहाँ पर इमेज है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो फोकल लेंथ इसकी आ गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो पोल से मेज़र करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या हो गया कि द डिस्टेंसेस measured in the direction of incident light are taken as positive and opposite to incident light are taken as negative।
टेकन एज नेगेटिव, कि जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मेज़र की जाएंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी, और जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में मेज़र की जाएंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी। जैसे इस केस में जैसे मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब पोल से अगर मैं मेज़र करूँ तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम मोस्टली ऑप्टिक्स में यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी यहाँ पर, u की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। और इमेज डिस्टेंस, अब क्योंकि लाइट की जो डायरेक्शन है वो ये है, यहाँ से ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो लाइट की डायरेक्शन ये है, लेकिन पोल से हर डिस्टेंस मेज़र करनी है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम पोल से इस तरफ मेज़र कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नेगेटिव ली जाएगी। सिमिलरली इमेज की डिस्टेंस की बात करें तो इमेज की डिस्टेंस इस तरफ मेज़र की जा रही है, ये है इमेज हमारे पास, तो ये पॉजिटिव ली जाएगी। फोकस की जो फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस है वो पोल से इस तरफ ली जा रही है, यानी कि लाइट की ही डायरेक्शन में मेज़र की जा रही है, तो यहाँ फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगी। सिमिलरली थर्ड वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, perpendicular distances above the principal axis are taken as positive and below the principal axis are taken as नेगेटिव। जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंसेस जो हैं वो पॉजिटिव ली जाएंगी। जैसे मान लो ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कोई मिरर है, जैसे ये मिरर है, तो जो डिस्टेंस इस तरफ ली जाएगी, ए प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऊपर की तरफ वाली जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ली जाएगी, और नीचे वाली डिस्टेंसेस जो हैं वो नेगेटिव ली जाएंगी। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ली जाएंगी ऊपर वाली। तो यहाँ इमेज की डिस्टेंस हाइट जो है वो भी पॉजिटिव ली जाएगी, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो भी नेगेटिव ली जाए पॉजिटिव ली जाएगी, लेकिन ये जो नीचे की तरफ डिस्टेंस है वो नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, दीज आर द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन optics. These sign conventions plays the important role in optics. So these are the basic of reflection of light.